بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام وائس آف فیصل آباد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید جی اے تنویر. غربت، مہنگائی، افلاس، بھوک اور بہت سارے مسائل. پھر عید، اور عید بھی ایسی کہ جس پر آپ کپڑے نہیں سلائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا. آپ بچوں کو کپڑے نہیں دلائیں گے پھر مسئلہ بنے گا. اور یہ سب آمدن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آمدن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں، ذرائع کتنے ہیں. آج کا پروگرام بھی عمومی سطح کا ہوگا جس میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کروں گا. میٹھی عید کے تناظر میں ہر وہ تلخ بات ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا جو حق ہے، سچ ہے. اور کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. روز ایک نیا بحران، روز ایک نیا ملبہ، روز ایک نیا مسئلہ. پاکستانی عادی ہو چکے ہیں. اب وہ مسکراتے ہیں. میں ان سے آف کیمرہ بھی بات کر چکا ہوں. یہ مسکراتے ہیں، یعنی جب یہ بات کرتے ہیں اب یہ وہ بات نہیں کرتے کہ جی بڑے پریشان ہیں، جی ہمیں بڑا مسئلہ ہے. اب یہ کہتے ہیں بس جناب چل رہے نظام. یعنی اب عوام یہ کہتی ہے جوتیاں مارنے والے بڑھا دیں، اور چاہے مارتے رہیں جوتیاں لیکن ذرا وقت پر ہمیں آگے گزار دیں. بتائیں سسٹم چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے جی. پہلے بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے. اسی لیے کہ 323 روپے پٹرول ہے. یہ کم ہے؟ نہیں یار، یہ تو کہہ رہے تھے اور بڑھانا ہے. ہم نے 3 دن سوچا، بچار کیا، غریبوں کے لیے کیا، لیکن نہیں بڑھایا. تو یہ بڑی بات ہے. یعنی وہ جو 323 انہوں نے کر دیا اس میں کتنے روپے بڑھائے تھے؟ بھائی ادھر سے جی ٹی ایس کا 40 روپے کرایہ لیتے ہیں، 50 لیتے ہیں، 300 بنتا ہے، 323 کا تیل لگاتے ہیں، 23 روپے اپنے جیب سے ہم ڈالتے ہیں. آپ خود سے ڈال کر دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ بھی سبسڈی دے رہے ہیں عوام کو حکومت کی طرف. ہم کیا کریں؟ جس کو کہتے ہیں 60 روپے یا 70 روپے، یہ ہمارے چاچے کھڑے ہیں وہ گلے پڑ جاتے ہیں. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے. خیر یہ ناظرین جی ایک اچھی طنز ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ بندہ ہکا ہوا بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حقیقت وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان 323 ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت تو کہتی ہے اگر ہم 105 بھی بڑھا دیں تو آپ نے کیا کر لینا تھا؟ بھائی پھر گھر چلے جائیں گے اور کیا. 105 بڑھ جائے گا نا، پھر ہو جائے گا 425 روپے کے لگ بھگ ہو جائے گا. تو پھر یہ ہم تو مزدور ہیں نا، کاروبار تو ویسے پہلے ہی ٹھپ ہے. اچھا اب عید بھی آ رہی ہے، ذرا مزیدار سی بات بتائیں. بچے کتنے خوش ہیں، کتنے راضی ہیں؟ میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں. یہ اس طنز کے پیچھے جو چھپا ہوا دکھ ہے میں اسے محسوس کر پا رہا ہوں. گھر جب جاتے ہیں بچوں کے کپڑے اور دیگر چیزیں یہ کیسے پوری ہوں گی؟ بھائی یہ کسی کے بھی پورے نہیں ہوں گے، کسی بھی بندے کی نہیں پوری ہوں گی. کوئی بندہ نہیں پوری کر سکتا. جتنے بھی میرے رکشے والے کھڑے ہیں، کوئی بندہ اپنے بچوں کو کپڑے یا جوتا لے کے نہیں دے سکتا. جو ہم رکشہ چلاتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے جوتے نہیں لے سکتے، بچوں کو کدھر سے لے کے دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں یہ جوتے آپ نے کب خریدے تھے؟ ذرا فوکس کیجئے گا. یہ کب خریدے تھے آخری مرتبہ؟ مطلب سال ہو گیا. 700 روپے کی لی تھی، ابھی یہ 900 کی ہے. اب یہ 900 کی ہے. ہاں 900. عید پہ خریدیں گے یہی پہنیں گے؟ نہیں الحمدللہ یہی پہنے گے. بھائی یہ ہے، شکر ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ انگوٹھی سونے کی پہنی تو نہیں آپ نے کہیں؟ بتا دے ورنہ ہم اتروا لیں گے آپ سے. یہ بھائی یہ سارے چکر ہیں. یہ ہمارے ادھر ہے حکیم صاحب، مجھے تھی ایک بیماری، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں پہنا اس سلسلے میں، ورنہ انگوٹھی نہیں پہنی. یہ بھی مہنگا شوق ہے. کدھر ہے انگوٹھی ہے یار. اچھا اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا پٹرول ویسے کتنے روپے ہونا چاہیے تو عید اچھی ہو سکتی ہے؟ بھائی اگر پٹرول کم از کم وہ پرانی لیول پہ آ جائے نا، نواز شریف صاحب کے دور والی آ جائے تو ہر بندہ خوشحال تھا. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جب سے یہ مہنگائی آئی ہے ہر آدمی پریشان ہے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خوش ہے ادھر. اچھا ویسے جنگ بھی تو لگی ہوئی نا دنیا بھر میں، اس کی وجہ سے بھی پٹرول کے ریٹ بڑھ سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک ہے نا نقطہ نا. یہ ٹھیک ہے جنگ لگی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، کیا کریں. اگر ہمارے حکمرانوں نے 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی ہیں تو ہم ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اچھا انڈر گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ ہی ہو گئے. اس کا مطلب یہ وہ حکومت آئے ہیں، ایک چکر لگایا ہے جی ٹی ایس کا، اور یہ کئی ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ابھی تک ایک چکر ہی نہیں لگایا. سواری لڑتی ہے؟ سواری لڑتی کیا، گلے پڑتی ہے یار. تو آپ لوگ کہتے ہیں لڑتی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ دیا آپ نے. 60 کیوں کہا ہے؟ 50 روپے دو، 40 روپے. باہر سے ہم 30 لیتے تھے. اور ویسے جو سرکاری بسیں آ گئیں اس کی وجہ سے تو میرا خیال ہے مزید کام بند ہو. اس کی وجہ سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا الحمدللہ. وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ اللہ پاک نے جو رزق دیا ہے وہ دینا ہے. لیکن یار یہ مہنگائی جو ہے نا، ویسے اوورآل ایک بات بتائیں، یہ مہنگا تو ہے پٹرول پر مریم نواز کچھ کر رہی ہے غریب آدمیوں کے لیے؟ ایسا کچھ لگ رہا ہے بہت سارے فنڈز بھی اس نے جاری کی. واللہ علم مجھے نہیں ملے، نہ مجھے ملنے ہیں. پتہ کیوں؟ میں خود آرمی ریٹائرڈ ہوں، مجھے وہ نہیں ملے نہ ملنے ہیں. کیا کہیں گے آپ
جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں سر، غریب عوام ہے، بہت مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹریفک وارڈن والوں نے اتنا پریشان کیا، لاری اڈے سے باہر یہ بیچارے نکلے، اگلے پمپ پہ کھڑے ہیں، چھپ کے کھڑے ہیں، اور غریب آدمی ہے، یہ روزگار ہے نہیں ہے، مہنگائی انتہا کی ہے، آٹا بہت مہنگا ہے، بجلی کے بل بہت ہیں، بچے اپنے بچوں کے لیے یہ لوگ جوتے اور کپڑے نہیں خرید سکتے، یہ لوگوں کے حال ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ حکومت کو چاہیے، اگر انہوں نے اللہ پاک نے ان کو اس منصب پہ بٹھایا ہے نا، تو یہ عوام کا بھی سوچیں۔ یہ عید جب قریب آتی ہے تو غربت کا احساس بڑھ نہیں جاتا، تھوڑا سا مزید زیادہ ہو جاتا ہے؟ بات پتہ ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں نا، جب بچے مانگتے ہیں نا کچھ کہ بابا ہم نے یہ لینا ہے، تو ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، تو یہ خودکشیوں کا عالم ہے۔ پھر وہ سوچتا انسان کہ میں کیا کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ رکشے چلانے والے ہیں، یہ کیا کماتے ہیں؟ 30 روپے ادھر کی پرچی ہے، 2 سواریاں بٹھائیں 60 روپے کی جھنگ بازار کی، 30-40 روپے کرایہ ہے، 350 روپے پٹرول ہے۔ ادھر سے باہر سے نکلتے ہیں، 6 جگہ پہ وارڈن والے کھڑے ہیں، جو حکومت نے کہا جی عید پہ چلان نہیں کرنے، اور دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں، کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوائیں وہ مہنگی ہیں، اب یہ گھی رمضان سے پہلے کشمیر گھی جو 520 روپے کا تھا، اب 580 روپے کا ہے۔ کون سی مہنگائی کنٹرول ہے؟ دیہڑی کمانے والا 1000-1500 جو بچے انسان کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کو 1 پاؤ دودھ نہیں پلا سکتا۔ وہ کہے نا میں اپنے بچے پڑھانے کی دور بات ہے، وہ دودھ 1 پاؤ نہیں لے جا سکتا۔ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، جب ٹیبل پہ کچھ نہیں ہوتا، دسترخوان پہ کچھ نہیں ہوتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب اگر ایوریج ایک گھر میں 3 بچے ہیں تو روزہ کشائی جو ہے، جیسے روزہ کھولنا ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس میں کتنے اخراجات منیمم ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا جی، اب پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، یہ پروگرام ہے، ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ معمولی گھر میں 2000 روپیہ ہو تو بچے روزہ کھول سکتے خوشحالی سے، اور میں کما رہا ہوں 1000 روپیہ، تو میں نے 2000 کہاں سے لے کے آنا ہے؟ جب میرے بچوں نے میرے سے پوچھنا ہے بابا یہ لے کے آنا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ یا میں نے چوری ڈکیٹی کرنی ہے، یا میں نے کسی سے پیسے چھین لے ہیں؟ سب سے بڑا جو ظلم ہے نا اس ٹائم اس ملک میں، چلان کا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بیمار بندہ ہوں، میری شوگر کی میڈیسن 350 کی تھی، اب 850 کی ہے، وہی میں نے کہاں سے لے کے آنا ہے؟ میں نے پھر فراڈ ہی کرنا ہے نا، میں نے دھوکہ ہی کرنا ہے نا۔ یعنی دل تو کرتا ہے کہ بچے روزہ رکھیں، لیکن وہ جو رکھانے اور کھلوانے کا خرچہ ہے اب وہ ابھی افورڈیبل نہیں ہے۔ حکومت کا یہ ہے کہ حکومت کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھی حکومت جو ہے نا، وہ ایک ریاست عوام کی ماں ہوتی ہے، اگر اس نے اس عوام کا نہیں سوچنا، یہ مصنوعی سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ مصنوعی، میں نے مہنگائی یہ کر دی، میں نے مہنگائی وہ کر دی، مہنگائی روج بھی ہے۔ اب لوگوں کو 15 ہزار گیس کا بل آیا بھی، کیوں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ عید سے پہلے جن کی ڈیٹ ہے پھر میٹر کٹ جاتے ہیں، سننے والا کوئی نہیں، کرپشن زیادہ ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے جی؟ مہنگائی کی برمار ہے، غریب طبقہ پس گیا ہے، غریب تر غریب ہے، امیر تر امیر ہے۔ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو 30-35-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں، ان سے پوچھو ان کے کیا حالات ہیں، وہ اپنے بچوں کو سوٹ نہیں لے کے دے سکتے۔ پورا دن رکشہ چلایا، گرمی دھوپ چھاؤں نہیں دیکھی، لیکن شام کو بچوں کی افطاری کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو کیا جذبات؟ سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عثمان حیدر ہے نا، اس کے خلاف ہی میں بات کر رہا ہوں، وہ نجائز تنگ آپ عثمان حیدر کے خلاف جو وارڈن ہے وہاں پر ہاں جی، کس جگہ پہ یہ تعینات ہے؟ اسٹیشن چوک پہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر رکشے والے کو تنگ کرتا ہے، صرف نجائز۔ یہ تو ایک بندے کی بات ہوگی، اوورآل اگر ایسے چلان ہو جائے تو جذبات کیا ہوتے ہیں ایک ڈرائیور کے؟ بات کیا ہوتے ہیں سر، جیب میں پٹرول ڈلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، پھر کیا کریں؟ اچھا، یعنی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پیٹرول کیسے ڈلوانا؟ 2000 2500 کا 3000 کا جتنے کا دل کرتا ہے اتنے کا چلان کرتے ہیں ہم، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو یار ہمارے پاس لائسنس بھی ہے تو پھر بھی چلان ہے، اگر ہم سائڈ پہ رکشہ لگا کے کھڑے ہیں تو پھر بھی چلان ہے۔ یعنی وجہ کوئی نہ کوئی بنا لینی ہے۔ مسجد اسٹیشن والی مسجد ہے نا، اس کے ساتھ رکشہ لگایا ہوا پھر بھی آگے چلان۔ اچھا، آپ ان سے یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی جان اب میں سائڈ پر کھڑا ہوا ہوں، سنتے نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لائسنس دکھاؤ، آپ کا شیشہ نہیں ہے، آپ کا اشارہ نہیں ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، فلانی جگہ لائسنس دکھا دیا تو آپ ادھر کھڑے کیوں؟ سواریاں اٹھانی ہے، اگر رکشہ رکے گا تو سواریاں اٹھائیں گے نا ہم۔ تگڑے بندے کے ساتھ کیا کرتے؟ تگڑے بندے کے ساتھ کچھ بھی نہیں، وہ جا رہا ہے، اس کو نہ لائسنس پوچھتے ہیں، نہ کوئی ڈرائیونگ پوچھتے ہیں، نہ اس کا اشارہ پوچھتے ہیں کہ میں تمہاری کیا ہے یا نہیں ہے،
वो जा रहा है, उससे वो कोई बात नहीं है उसकी। अच्छा, अब चूंकि ये आज रमज़ान आखिरी अशरे में जा चुका है, ईद करीब आ रही है, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। क्या उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर पाएंगे ईद पे? जो हालात जा रहे हैं नहीं होगी, क्योंकि 2000, 2500, 1500, 2000 रुपया कमाते हैं हम। वो शाम को जब चलान होगा तो हमने घर क्या देना है? बाकी बिजली के बिल ये वो डाल के बाकी बच जाएगा कि ईद पे कुछ कर सके? उम्मीद तो नहीं है, मेरा तो खुद मकान भी रेंट का है। अच्छा, आप कोई बात कर रहे थे चालान के हवाले से। लड़का हमारे साथ ये रिक्शा चलाता है, चिंची रोड लोकल रिक्शा, जो बेसिकली देख लें कि नोवल्टी पुल से 60 रुपए या 50 रुपए किराया, अभी हमने 10 रुपए ज़्यादा किए हैं कि चलो यार हमारा भी कुछ हौसला बढ़ जाएगा क्योंकि तेल ज़्यादा। अब उन वहाँ से आकर GTS चौक में चलान हो जाए 2000 का, 300 रुपए से ज़्यादा या 300 में हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। अगर आते ही 2000 का चलान हो जाना तो हमने क्या सारी दिहाड़ी में कमाना है और क्या खाना है? वो तो बेसिकली दिमाग इंसान का आउट हो जाता है कि यार मेरा 2000 का चलान हो गया। नहीं, मैंने 3000 का चलाया। ठीक है, तो मेरा 3000 का या 2000 का चलान हो गया, तो मैं अब क्या करूंगा? एक तो 2000 का चलान से परेशानी से इंसान का दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाता है, वो सारी दिहाड़ी यही सोच जाता है यार मैं 2000 इकट्ठा कहाँ से करूंगा। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आम दिनों में तो चले चालान होता है, लेकिन ईद से पहले एक हफ्ता कम से कम छोड़ दिया जाए चालान को, तो क्या बेहतरी आ सकती कुछ? सारी यही बात है ना, छोड़ने का तो ये कह देते हैं, हर साल ही कहते हैं कि हमने छोड़ दिया। आप बाहर जाएं, बेसिकली देखे रोड पे हर जगह पे 3-4 वाल्टन वाले खड़े हुए हैं, चलान मोटरसाइकिल के, रिक्शे के, हर चीज का चलान हो रहा है, किसी को माफी दी नहीं जा रही। अखरियत ये हुकूमत ने कहा है कि यार 6 दिन या 5 दिन आप बिल्कुल छोड़ दें, तो किसने छोड़ा? किसी ने भी नहीं छोड़ा। आप बाहर जाएं देखें, यही हालात है। वो ये गिला है जनाब के हम लोग खड़े हैं, हुकूमत की तरफ से ऐलान, यानी सिटी ऑफ फैसलाबाद ने ये ऐलान कर दिया कि जी रोक दें, चालान ना करें ईद तक, लेकिन फिर भी इन लोगों का ये कहना है कि इनके 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के चालान हो रहे हैं और सूरत हाल जो है अब वो नागुफ्ता बे है। आप समझते हैं ईद आ रही है, तो क्या तैयारियां कर रहे हैं ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ चैनल का बड़ा मशकूर हूँ, आप हमारे तरफ आए, आपने हमारी हौसला अफजाई की। आई एम वेरी अप्रिशिएट फॉर यू ऑल टीम। बट आई थिंक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें से सारे दोस्तों ने तो आपको सवाल दे दिए जवाब। मेरे पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि देखिए अभी मेरे पास मैसेज है, मेरा 3000 का चलान हुआ है, अब अदरवाइज वो बनता नहीं है। उसके बावजूद भी सब दोस्तों ने आपसे यही इल्तिजा किया कि हम वहाँ पे खड़े होते हैं, हमारा चलान होता है, इधर खड़े होते हैं, चलान होता है। बात बार बार वही है। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा जी CPO ने या DPO ने या RPO, जिसने भी सरकारी अहदेदार ने ये कहा जी 4-5 दिन ईद के जो पहले चलान छोड़ दें। अब क्या दिन रह गए हैं? मैक्सिमम 2 दिन तो रह गए हैं। अब ऐलान करने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। रिलीफ तो ये था कि आप पूरा मंथ ओनली रमज़ान शरीफ ये कहते कि यार किसी बंदे का चलान नहीं करना। अगर मेरे पास लाइसेंस है, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, आपका हेलमेट नहीं है, आपका लाइसेंस नहीं है, आपका वही कुछ प्रॉब्लम की इशारा नहीं है, आपको लाइन लेंथ का ख्याल नहीं है, आपने किधर खड़े होना है, किधर नहीं खड़े होना, मतलब ये सारी जो भी रीज़न है वो ड्राइविंग पे आती है। अभी एक बंदा देख लो, ड्राइवर वो जा रहा है, उसको खड़ा किया, भाई आपके पास हेलमेट नहीं है। सर मैं बड़ा बंदा हूँ, गरीब आदमी हूँ, घर के बच्चों का राशन पानी लेके जाऊँ, या हेलमेट 1500-2000 का लूँ? वो 300-400 वाला हेलमेट 2-2000, 2500, 5-5, 7-7 हज़ार का बिका ना, उसमें किसका फ़ायदा हुआ है? बंदे के माड़े का नहीं फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ईद की तैयारी क्या कर? ईद की तैयारी क्या है? ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं मुंह उठा के, आपको नजर आ रहा है, माशाल्लाह आप समझदार हैं। क्या तैयारी होगी थी? अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, यार कुछ भी नहीं है भाई, किससे मांगे? हम सफेद पोश लोग हैं, हम 10-20 रुपए रिक्शे का सवारी लेते हैं, माँ जी भाई बहन कह के उठा के लेके जाते हैं। अब किसका जेब में बोले यार 200-500 रुपया दो मुझे, या 1000 रुपया दो मुझे। ये राणा साहब खड़े हैं, पग वाले हैं, 1 मरबा का जमीन है, ये चोरा इधर हकरी करता है, ये सवारी उठा के उधर लेके जाता है। ये किसको बोलेगा यार मुझे 2000-5000 रुपये दो, मैंने अपने बच्चे का लिया। आपस की बात है, अगर आपको हुकूमत परमिशन दे दे कि आपका चलान नहीं करना जी जी 1 महीने, जी, तो आपके ड्राइवर वैसे अन्नी नहीं पा देंगे? यार अन्नी क्या पाएंगे? माशाल्लाह गुड आइडिया। नहीं, मुझे बताओ वैसे ना। अच्छा चुटकुला दिया। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू नो अबाउट इट कि अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं, अगर हमें कह दिया जाए कि खुल छुट
तो मुझे बताओ कि आपके ड्राइवर वैसे क्या करेंगे, सच्ची बात बतानी है। आई वेरी रियली थैंक्स अबाउट योर गुड आइडिया, बट एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, ताली तो तुमसे बचती है ना। हाँ यस एब्सोल्यूट गुड कटिंग, क्लैपिंग ऑल क्लैपिंग होगी। अच्छा, बात वही हुई, मेरे भाई ने जो बात की है कि अगर मुझे भी इजाजत दे दी ना कि भाईजान थानू खुली छुट्टी है, तो फिर अंदाजा करें मैंने भी नेर डाल देना यहाँ पे। मैंने कहना मुझे तो खुली छुट्टी है, एस चौक में बढ़ जाऊं, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं। ये बात ठीक है कि चलान भी हो रहे हैं, लेकिन अब ये इन्होंने सारी ट्रैफिक चलाई वन वे। बीच में मैंने एक सवाल थ्रो किया कि अगर आपको इजाजत दे दें तो करेंगे क्या, तो इन्हें पता है कि अगर इजाजत मिल गई तो उसके बाद फिर हम नजर नहीं आएंगे कि कौन किस गली में घुस गया है। ठीक है, ये बस जो है इस पर आप हॉकरी करते हैं। अच्छा, ये किस जगह जाती है बस? लाहौर। लाहौर। किराया बड़ा है कुछ? बड़ा। पेट्रोल की वजह से? डीजल की वजह से। डीजल की वजह से। अच्छा, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ तो जो है वो सवारी जो है यहाँ बैठ रही है वो परेशान है जी। क्या कहते? बिल्कुल परेशान है वो। बाल बड़े खूबसूरत हैं आपके यार। ईद पे कोई तैयारी की है? क्या तैयारी की? दो सूट लिए हैं। अच्छा, कपड़े सिलाए, वेल डन। और जो लोग घरों को जा रहे हैं वो गिला कर रहे हैं कि जी आप रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? कर रहे फिर हैं। क्या जवाब देते हैं? मजबूरी है उसको, उनको कहते हैं डीजल बढ़ा हुआ है, मालिकों ने आगे किराया नामा लगा हुआ है, क्या करें, हमारी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी तो मजबूरी है, जो हुआ है उसके बायस आपने तो रेट बढ़ाने थे। अच्छा, जो सफर है इस यहाँ किस शहर का ज्यादा सफर आप देख रहे हैं लोग? मुल्तान फिलहाल तो जा रहा है सफर ज्यादा, मुल्तान में हमारी वरम में मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कितना किराया बढ़ गया है? किराया जितना भी बढ़ गया डीजल के हिसाब से नहीं उतना बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। और डीजल के रेट में कितना फर्क पड़ा? 55 रुपये लीटर के पीछे फर्क पड़ा और 20 रुपये किराया बढ़ा है। 20 रुपए किराया बढ़ा है। और इसके अभी टायर डलवा के हैं पीछे नीम, आज 1 महीना पहले 70,000 के थे, आज वो 80,000 की जोड़ी टायरों की मिली है, आज वो सामने है। मोबिलैल जो पीछे 18,000 का आज 22,000 का मिला है, सिर्फ डीजल बढ़ने की वजह। सवारी बिल्कुल नहीं है, किराया जरूर बढ़ गया है 20 रुपये, लेकिन सवारी नहीं है, गाड़ियाँ खाली जा रही हैं। अच्छा, किराया जो है जाहिर सी बात है लोगों ने तो सफर करना ही है, आखिर बिलाखिर में तो पूरी है। जो लोग पहले 10 सफर करते थे अब समझ लो 4 लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जैसे ही डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो किराए बढ़ जाते हैं, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, उसकी कमीशन भी बढ़ती है। वो कैसे? वो 10% होती है, जितनी कमीशन किराया अगर 10,000 बना है तो जब किराया बढ़ेगा तो 12,000 बन जाएगा, कमीशन उसकी बढ़ जाएगी। नाज़रीन, एक बड़ा पॉजिटिव सा पॉइंट सामने है इस सारी गुफ्तगू के अंदर ये भी कि अगर पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं साथ काम कर रहे होते हैं उनकी वेजेस के अंदर भी इजाफा हो जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ कहते हैं शर होती हैं ऐसी जिनमें खैर भी होती है। कहने को तो ये 55 रुपए जो बढ़े हैं उसके नतीजे में इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने 20% किराए जो हैं वो बढ़ाए हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये बता रहे हैं कि चूंकि अब जितना सफ़र होगा डीजल उतना ही लगेगा, तो जाहिर सी बात उसकी कॉस्ट तो निकालनी है। आप क्या समझते हैं हुकूमत को पेट्रोल और डीजल के रेट किस हद तक मुस्तहकम रखने चाहिए? हम तो कहते हैं जब 200 रुपया था वही ठीक था, जब 200 से आगे चला गया हर चीज बढ़ी जा रही है। ईद पे काफी रश होता है। बिल्कुल, लेकिन ईद पे अब किराया कोई नहीं बढ़ाएगा, किराया वही होगा जो गवर्नमेंट का किराया होगा, क्योंकि आरटी सेक्रेटरी एडमिनिस्टर सारों की तवज्जो जो है ना ट्रांसपोर्ट की तरफ है। किराया अपनी मर्जी से कोई नहीं ज्यादा लेगा। जो किराया वो सरकार आपको कह रही लगाएं, वो नहीं, वो फिजिबल है? आप समझते हैं कि उसमें गुजारा हो सकता वो नाम भी हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने उन्होंने माननी है भी नहीं है, लेकिन माननी तो पड़ेगी। नाम भी बचेगा, लेकिन गवर्नमेंट की हम नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार ने कितना बढ़ाया किराया? 20%। 20% जी। डीजल 55 रुपये बढ़ा है, ये 20 रुपये है। यानी जहाँ 200 रुपया किराया था 240 हो गया 20% के हिसाब से, और वो रेट लिस्ट फॉलो कर रहे हैं आप लोग। लगी हुई है 40 रुपये। नाज़रीन, ये रेट लिस्ट जो है किरायों के हवाले से ये लगी हुई है, जहाँ पर ये सारे इन्होंने जो रेट थे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर लगा दिए। यानी मुसाफिरों के लिए ये सहूलत कर दी है कि जी नया किराया और पुराना किराया, ये मेरे कैमरामैन अकरम विक्की आपको अभी दिखा रहे हैं कि पुराना किराया और नया किराया जो है उसके हिसाब से इन्होंने डिटेल दे दी है। यानी लाहौर का पुराना किराया 480 था और अब 600 रुपया हो चुका है नया किराया। यानी इस हिसाब से 120 रुपये जो है वो लाहौर के लिए इजाफा किया गया है ये लोकल बस के अंदर, और ये इस हिसाब से जो किराया है ये काफ़ी
यानी जिसे कहें कि इसमें भी काफ़ी हद तक जो है इजाफा देखने को मिला, यानी 120 रुपये जो किराया है वो लाहौर के लिए बढ़ा दिया गया हुकूमत की जानिब से। यानी बिल आखिर फिर ये डीजल और पेट्रोल जो है ये जाकर किस पर गिरा? अवाम पर गिरा, यानी अवाम ने ही भरना है। आज जो कुछ हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टर का नुकसान तो मुझे इसमें उस हद तक, उस सतह तक दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी रेट बढ़ने से नुकसान तो होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? तनवीर अवान। अच्छा अवान साहब, ये बताइए कि जो किराए बढ़े हैं, सच्ची बात करनी, इसका नुकसान ट्रांसपोर्टर को हुआ या अवाम पर ही पड़ा सारा बोझ? देखिए ये ट्रांसपोर्ट पर भी है, आवाम पर भी है। नहीं, 480 रुपये लाहौर का किराया था, वो 120 रुपये बढ़ाकर 600 कर दिया गया। अब ये जेब तो गई उस बंदे की जिसने 120 रुपये ज्यादा किराया बढ़ा, लेकिन पर लीटर 55 रुपये डीजल भी बढ़ा है ना, जिसकी वजह से ना ये इतना किराया करना पड़ा है। डीजल काफी महंगा है ना, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर 55 रुपये को तकसीम किया जाए एक सवारी पर, यानी आपकी जो गाड़ी लाहौर के लिए जाती है कितना डीजल लग जाता है? देखिए डीजल जो इसका मैक्सिमम डीजल है ना आने जाने का 160 लीटर लग जाता है। 160 लीटर लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। फिर सवारी जो है ना वो है कोई नहीं है। अगर सवारी हो ना आम तो फिर किराया कम भी हो ना तो काम चल जाता है। अब ज़्यादा जो सफ़र सवारियाँ कर रही हैं ना वो एसी टाइम की कर रही हैं। नॉन एसी इधर लारी अड्डे में देख लें आप कितनी की रौनक है, बिल्कुल कम ही सवारियाँ हैं, इसकी वजह से है। लेकिन ये है कि अवाम भी परेशान है और ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, अवाम भी परेशान है, ये तबसरा भी बड़ी हद तक काबिल कबूल है। लेकिन सूरत हाल फिर वही है नाज़रीन कि अवाम जो हैं उन्होंने सफ़र करना है, उन्होंने भुगतना है। लाहौर के लिए जो किराए हैं उसमें इजाफा होने के बायस एक सवारी को, अगर ये मैं आम बस की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल गई गवाची थकी हारी बस है, वो 480 रुपये किराया लेती थी, अब 120 इजाफे के साथ 120 रुपये के 600 रुपया ले रही है। तो एक आम शहरी जो है उसकी परेशानी में तो इजाफा हुआ है। ताहम हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाने से लोगों की ईद जो है वो महंगी हो गई है, चूँकि जब आप निकलेंगे रोड पर जाएंगे पेट्रोल खर्च होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आप जिस चीज़ को भी कैरी करेंगे उसे आप महंगा कर देंगे। लिहाजा रेट जो हैं अगर पेट्रोल के मुस्तहकम हैं तो फिर बड़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि इन जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम जो इस बात की ज़मानत देता है कि आम बंदा जो है उसे रिलीफ मिलेगा और लोग जो हैं वो अपने घर बार को भी पूरा कर सकेंगे, महंगाई भी बड़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी। लिहाजा जब हमारी आवाम से बात होती है तो आवाम ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हुकूमत हमें रिलीफ दे। नाज़रीन, मैं इस चाइल्ड हेल्पलाइन जो है 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर फैसलाबाद के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और हस्बे साबिक मैं यहाँ पहले भी आया था, चूँकि ये लारी अड्डे का एक ऐसा इदारा है जो बच्चों की तलाश का अमल जो है वो उस पर ये काम करते हैं। यानी अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो यहाँ पर आकर बताते हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो साहब मौजूद थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो खातून ड्यूटी करती हैं वो छुट्टी पर हैं। अच्छा, आज वो हमें मिल गई हैं, तो आज जाफरी साहब जो यहाँ पर इंचार्ज हैं वो मौजूद नहीं हैं और ये बता रही हैं कि वो कहीं बाहर निकले हुए हैं, वो शायद नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। लेकिन आज भी बच्चों के हवाले से इनके पास कोई मालूमात नहीं है, जिस पर इनका ये भी कहना है कि इदारे ने ज़ुबान बंदी कर रखी है कि आप कोई भी बात नहीं बताएंगी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसा इदारा जो गुमशुदा बच्चों को तलाश कर रहा है, हम उन्हें कैसे तलाश करें, ये भी मसला है। यानी एक तो बाहर बोर्ड कोई वाज़े तौर पर नहीं लगा हुआ कि जिसे देखकर हम यहाँ पर कोई भी बंदा अपने गुमशुदा बच्चे को उसका पता करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन अगर कोई आता है तो वो इन्हें कैसे ढूंढे, ये भी एक मसला है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत जहाँ बहुत अच्छे इकदाम उठा रही है, सीएम पंजाब बड़े काम कर रही हैं, तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन है इसके हवाले से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर का एक झैली आगे इदारा है उस पर भी वो काम करें। यानी 1121 इसी दरवाजे पर लिखा है और शायद इसके अलावा शहर भर में इसकी कहीं तशहीर नहीं कि अगर अड्डे में, लारी अड्डे में कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसके बारे में कैसे करना है। प्रोग्राम तो मेरा ईद के तनाजुर में है, लेकिन ईद के दिनों में मुसाफिरों की जो आमदोरफ्त है वो लारी अड्डों में पहले से कहीं ज़्यादा होती है, जिस पर यहाँ पर एक एक्टिव मुतहर्रिक स्टाफ की ज़रूरत है जो वाइब्रेंट और काम कर सके। मैडम, आपके जो इस वक्त जाफरी साहब हैं वो कब तक आ जाएंगे वापस? 2-2:30 बजे आ जाएंगे। 2-2:30 बजे वो आएंगे। और अगर अब किसी का बच्चा गुम हो जाए तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये है बच्चे गुम हुए हैं, तो वो आए हैं, तो उन्होंने अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन दी है मुझे सारी, तो वो मैंने नोट कर ली है।
ये देखें, और मैंने उनको बाकायदा मेन ऑफिस भी भेजा है कि वहाँ जाके भी चेक कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे अपना नेम वगैरह गलत बता दें। आखिरी जो एंट्री हुई है वो कब हुई है? ये एंट्री आज के सर ये 7 को पहले हुई थी, 7 मार्च को, और आज हुई मार्च को। आज को एक ही एंट्री है दोनों दिनों में? नहीं सर, ये काफ़ी हैं। मतलब इसमें से कोई बच्चा तलाश किया आप लोगों ने? 7 को 2 एंट्रियाँ हैं सर, अब ये है 16 को 3 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। पिछली बार जब मैडम मैं प्रोग्राम करने आया तो आप कहाँ थी? आप उम्रे पर थी? हाँ जी सर, मैं उम्रा पे गई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे। और अब जाफरी साहब कहाँ पर हैं जो पिछली बार हमें मिले थे? सर वो मुझे तो नमाज का कह के गए हैं अब। अच्छा, चलें, इसमें ये भी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है, बाहर कोई वाज़ेह बोर्ड नहीं लगने चाहिए आप लोगों को? लगे हुए हैं ये हमारे सर, बाहर लगाए हुए हैं। नहीं, वो तो एक आध लगा हुआ है ना, 11-21 तो यहीं आपके दरवाजे पर ही लिखा। विजिट करते हैं, हमारे पास ब्रोशर है, हम डिवाइड करते हैं। नहीं, अब जिसका बच्चा गुम हो गया वो ब्रोशर पहले ढूंढेगा या आप उसे ब्रोशर पकड़ाएंगे कि जी आपका बच्चा गुम हो गया, ब्रोशर पढ़े? जिसका बच्चा उसके तो हाथ पांव सूज जाने, फूल जाने, उसने आपको ढूंढना है, बल्कि उसे पता ही नहीं कि मैंने 11-21 पर कॉल करनी है। इस पर आप समझती हैं मजीद कुछ काम होना चाहिए? आजकल मीडिया का दौर है और आप लोग भी हमारे साथ राब्ते में हैं, तो आप लोग आवाज़ दूर तक आपकी जाती है, पहुंचाते हैं, हमारा भी यहाँ तक। वैसे मुझे बताएं, आपका स्टाफ एक वक्त में कब इकट्ठा होता है? यानी मैंने बताया पिछले प्रोग्राम में आप उम्रा पर थी, अब जाफरी साहब जो यहाँ पर इंचार्ज है वो किस स्केल के अफसर हैं? वो 14 स्केल के अफसर। 14 स्केल। हाँ जी। और आप साथ में? सॉरी सर, 15 पे। 15वें स्केल के। अच्छा, पिछली बार जब मैं आया तो उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर बिजली का जो बल्ब है उसका स्विच कहाँ पर है, लेकिन खैर उन्होंने फिर रोशनी जो थी वो जला दी थी। लेकिन बच्चों की तलाश के लिए आप नहीं समझती कि मजीद स्टाफ होना चाहिए आपके पास? सर होना तो चाहिए, लेकिन अब जाहिर है ये ऑफिसरों को ही चाहिए देखना, तो हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो इनके आला अफसरान हैं, अगर उन्होंने कोई ज़ुबान बंदी कर रखी है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ज़ाहिर सी बात है जब इनसे बात करूँ तो जवाब भी देंगी। और ये खुशी की बात ये कि इन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं। चूँकि मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, ये समझ लें कि ये एक 10 बाई 10 का, गालिबन बल्कि 6 बाई 10 का एक रूम है जिसके अंदर एक दफ्तर बनाया गया है जो बच्चे तलाश करेगा। लेकिन इनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर कोई ऐसे स्टाफ मेंबर्स नहीं हैं जिनसे मिलकर ये काम हो सके। और जिसका बच्चा ईद पर गुम हो जाएगा उसकी ईद क्या होगी, इस पर मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं कि अगर किसी साहब का बच्चा लारी अड्डे में आकर गुम हो जाता है तो पहले वो 1121 का ऑफिस कैसे तलाश करे, ये भी मसला है। पहले वो इन्हें तलाश करेगा, और जो इनके बड़े हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक बड़ा दफ्तर और उसके अलावा स्टाफ जो है वो दिया जाए, ताकि यहाँ पर अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए तो वो इन तक आए तो उसे अपने बच्चे की तलाश में आसानी रहे। जैसे अभी मैंने आपको ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से ये इदारा दिखाया जो बहुत से फंड्स रखता है, लेकिन जब मैं पिछली बार आया तो एक साहब मौजूद थे, दूसरी खातून नहीं थी, और अगर आज खातून मौजूद हैं तो दूसरे साहब मौजूद नहीं हैं, जिस पर हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की ईद अच्छी गुजर सके। आज के प्रोग्राम में महंगाई के अलावा जो दीगर इशू लारी अड्डे में थे, मैंने उन्हें भी साथ में ज़िम्नन एड्रेस कर दिया, और मेरी दुआ है कि तमाम पाकिस्तानियों की अच्छी ईद गुजरे। ताहम महंगाई के दिनों में और बाकी मामलात और मसाइल के साथ ईद को देखना कदरे मुश्किल है लोगों के लिए। इस बार जो है वो महंगाई के बायस भी ईद में मुश्किलात हैं। आज तक के लिए वॉइस ऑफ फैसलाबाद में इतना ही। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर दूंगा। अपने मेज़बान सैयद जी तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।